Hello and good morning, students. Welcome back to the class. As you all are aware that we had started our second chapter of economics in our previous class. There we had discussed the introductory part of the chapter about the different sectors of economy and their classification on different bases. Now we will continue the same chapter in today's class with some other objectives or other part of the chapter. Today what we are going to discuss is includes the comparison among the three different sectors of economy. कौन से थ्री डिफरेंट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द जॉब, जैसा कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था. ऑन द बेसिस ऑफ nature of the job, it can be classified into three categories. These are agriculture sector, secondary sector and tertiary sector. So from there we are going to take this chapter ahead with a comparison among the three different sectors of economy. Along with this, today we will discuss also about the contribution of these sector in the GDP of the country. GDP, that means the domestic production, gross domestic production of a country. That a country, how much a country is producing within an accounting year in all the three sectors of economics. This is called GDP. जीडीपी में हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है. एवरी सेक्टर इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, वेदर इट इज agriculture, whether it is secondary, whether it is tertiary, all are doing the economic activities. They are contributing into the production. So that we will discuss which sector is contributing more into the GDP. Whereas we will discuss about the changes, the growth in the sectors of economy, कि कौन सा सेक्टर कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. प्राइमरी सेक्टर पहले के कंपैरिजन में, पहले का मीन्स यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द टाइम ऑफ अर्ली इंडिपेंडेंस एरा, फ्रॉम द 1947, और वी शुड से दैट फ्रॉम द प्लानिंग पीरियड 1950 से लेकर 1960 से लेकर अब 2013, 14, 15, या अगर हम बात करें नाउ अ प्रेजेंट डेज, अब तक क्या कुछ चेंजेस आए हैं हर सेक्टर में. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास with comparison among the different sectors of economics. So here we are going to discuss, we are going to start with the comparison among the three different sector, primary, secondary and tertiary sector. As I told you that every sector is involved or engaged in the production activity, every sector is producing more and more goods and services. So also these three sectors have a large number of people working in them. बिना वर्कर्स के, बिना एम्प्लॉयमेंट के प्रोडक्शन एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर कोई सेक्टर प्रोवाइड करता है तो इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ नेसेसरी टू बी इंगेज्ड पीपल इन दिस सेक्टर फॉर दोज एक्टिविटीज़, चाहे वो प्रोडक्शन हो या सर्विसिंग प्रोवाइड करना हो. So the next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. So how we can know about it, we can get information about it, how we can get knowledge about it. How do we count the various goods and services and know the total production in each sector? So here we are going to discuss. With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense. तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी goods and services, thousand number of goods are there that we produce in different sectors of economy. So how it become possible to calculate all the goods, each and every single goods, while we calculate the total production of a country? कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे एक एक चीज़ को हम काउंट करते हैं? So yes, you are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. तो कभी भी हम देखो, नंबर ऑफ गुड्स तो थाउजेंड ऑफ गुड्स आर देयर, कहाँ तक आप गुड्स को कैलकुलेट करोगे? तो
नंबर ऑफ गुड्स को कैलकुलेट करने की बजाय हम उनके वैल्यू को ऐड करते हैं. वैल्यू एडिशन क्या है ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, विच इज गिवन हियर. फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 kgs ऑफ wheat इज सोल्ड एट ₹8 per kg. ठीक है, 10,000 kg wheat है जिसका पर यूनिट प्राइस या हम बोल सकते हैं पर केजी प्राइस कितना है, ₹8. द वैल्यू ऑफ wheat विल बी, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी. अगर मैं बोलूँ कि 10,000 kg का प्राइस, टोटल प्राइस इन द मार्केट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिंपली, तो इट विल बी ₹80,000. So the total value of 10,000 kg wheat is ₹80,000. The value of 5,000 coconut at ₹10 per coconut will be 50,000. तो हम बजाय एक एक यूनिट को कंसिडर करने के हम उसकी वैल्यू को एडअप करते हैं. ठीक है, while we are calculating the total production, we are not calculating each and every single good कि मैंने 10,000 गुड्स प्रोड्यूस की, 5,000 गुड प्रोड्यूस की. नॉट लाइक दैट. We generally adds the value as per the prices of the commodities, right? Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and that added up. तो इसी तरीके से, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा, इसी तरीके से in each and every sector we calculate the value of production, the cost of production, not the unit of production. ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? सो रिमेंबर, दिस इज वन प्रिकॉशन one has to take. Not every good that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. हम सिर्फ क्या करते हैं, अच्छा एक final goods and services से यहाँ क्या मतलब है, the good that we are directly will use for consumption purpose. कभी भी हम किसी intermediate good को यहाँ पर calculate नहीं करते. तो before going through the concept of final goods, it's important to understand the types of good. दो तरह की गुड हैं. एक हो गई आपकी फाइनल गुड जो कि आप डायरेक्टली कंज्यूम करेंगी, और दूसरी होती है इंटरमीडिएट गुड. डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में, देखो इंटरमीडिएट गुड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मीडिएट, ठीक है, अभी तक उसका कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं है, और वी कैन से दैट वी कैन यूटिलाइज दिस गुड for further production, we can add more value into it. For an example, अगर मैं बात करूं कि we are making biscuits, है ना, आप बिस्किट्स बना रहे हैं, बिस्किट्स बनाने में हमें रॉ मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आई शुड से क्या क्या चाहिए होंगे, फ्लावर चाहिए है, शुगर चाहिए है, बटर चाहिए है, फ्लेवर्स चाहिए, सो ऑल दीज थिंग्स विल रिक्वायर्ड. लेकिन आप जब फाइनल गुड की बात करते हैं तो फाइनल गुड क्या है, बिस्किट. जो पैक ऑफ बिस्किट होगा उसका प्राइस भी क्या होगा, फाइनल प्राइस होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम सेइंग दैट पैक ऑफ बिस्किट जिसकी प्राइस कितनी है, ₹50 है या ₹60 है, तो 50 या ₹60 में उन सारे इंग्रेडिएंट का कॉस्ट इन्वॉल्व है. ठीक है, तो जो ₹60 है वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, बिस्किट्स, पैक ऑफ बिस्किट्स. Whereas if we talk about the intermediate goods, तो intermediate क्या था, आपने बिस्किट बनाने के लिए ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट का प्राइस पे किया, बटर लाए उसका प्राइस पे किया आपने, फ्लावर का प्राइस पे किया आपने, शुगर को पे किया, तो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरमीडिएट. ठीक है, जो बिस्किट को फॉर्म करने में आपने चीज़ें यूज़ की वो हो गई इंटरमीडिएट, और लास्ट फाइनल प्रोडक्ट जो कि आप डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे दैट इज़ योर बिस्किट्स, राइट? I hope the difference between all these things is clear up to you. So here an example is given that what I am talking about earlier. A farmer who sells wheat to a flour mill for ₹8 per kg. The mill grinds the wheat, sells the flour to a biscuit company ₹10 per kg. एक farmer है वो wheat produce करता है और sell करता है 8 per kg. किसको, एक फ्लावर मिल को.
और फ्लोर मिल जो है वो आगे एक बिस्किट कंपनी को सेल आउट करती है उसे 10 रुपीज़ पर केजी पर, ठीक है। फार्मर ने वीट किया था कितने पर, 8 पर केजी पर। फ्लावर मिल ने उसको कन्वर्ट कर दिया फ्लावर में, इसीलिए उसने 2 रुपीज़ प्राइस मोर कर दिया। 10 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग उसने किसको सेल किया, बिस्किट कंपनी को। ना आगे बिस्किट कंपनी क्या कर रही है, यूजेस द फ्लावर एंड थिंग्स सच एज शुगर ऑयल मेक फ्लावर पैकेट्स ऑफ बिस्किट। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट द कंज्यूमर फॉर ₹60, ठीक है। अब वो उसको कितने में बेच रहा है, आगे 60 रुपीज़ में बेच रहा है। तो ये क्या कहलाता है, वैल्यू एडिशन कहलाता है। क्लियर? So why are only final goods and services counted? In contrast to the final goods, goods such as wheat and the wheat flour in the example are intermediate goods, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों प्रोडक्ट्स की वैल्यू बिस्किट्स में ऐड हो चुकी है, ठीक है। जब हम प्राइस रखते हैं किसी बिस्किट के पैक का 15 रुपीज़ पर पैक, 30 रुपीज़ पर पैक, दैट मीन्स वी ऑलरेडी एडेड अप द वैल्यू ऑफ फ्लावर और व्हीट। अलग से उनकी वैल्यूज़ हम उनमें ऐड नहीं करेंगे। 60 रुपीज़ जो प्रोडक्ट का प्राइस है, इट मीन्स वो दोनों वैल्यूज़ ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी हो गई, फाइनल गुड को बनाने के लिए जो हमने गुड्स यूज़ की। अब हम जब बात करते हैं किसी भी सेक्टर के प्रोडक्शन की, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे कि हाउ मच प्रोडक्शन इज गिवन बाय ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, बाय द प्राइमरी, बाय द सेकेंडरी, बाय द टर्शरी। तो जब हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम कौन से वाले प्रोडक्शन की बात करते हैं, इंटरमीडिएट नहीं, हम किसकी बात करते हैं, फाइनल प्रोडक्शन की। क्लियर? तो हम कौन से प्रोडक्शन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ओनली फाइनल प्रोडक्शन, राइट, नॉट द इंटरमीडिएट। सो या तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्शन, या जो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते हैं, एक डेफिनेशन अगर आपको देनी हो तो आप क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर। ईच सेक्टर कौन सा, तीनों में से कोई भी सेक्टर, सॉरी नॉट कोई भी, तीनों सेक्टर्स का कलेक्टिवली। ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, ठीक है। तो कौन सी गुड्स की बात कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सेक्टर प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट कॉल्स द टोटल प्रोडक्शन। और उसी टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि हम कहाँ कर रहे हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर नॉट इंक्लूडिंग द एक्सपोर्टेड गुड्स, द इम्पोर्टेड गुड्स, नथिंग एल्स, है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर ओनली प्रोड्यूसिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। तो ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ our country, for example, if I'm saying that Indian economy, how much we are producing in our economy, it's called the gross domestic product of a country. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year, and this GDP only shows how big the economy is. इंडिया की अगर हम बात करें तो जीडीपी जो है, जीडीपी हमारी एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशन को शो करता है कि कंट्री जो है कितनी कैपेबल है, कितना कंट्री में टोटल प्रोडक्शन है, हाउ मच वी आर एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल बाय प्रोड्यूसिंग विद इन द टेरिटरी, राइट। नाउ वी आर मूविंग ऑन द अदर पार्ट ऑफ चैप्टर और द अदर बेस ऑफ कंपेरिजन अमंग द 3 सेक्टर। अभी तक हमने कंपेरिजन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड in these sectors. Now we are going to compare all the 3 sector on the basis of the growth. Growth, that means the historical changes takes place in these sector from the early era of independence to टिल नाउ। अब तक कितना कुछ चेंजेस आया, क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्या नेगेटिव चेंजेस हैं, कौन सा सेक्टर जो है दैट इज लीडिंग सेक्टर और विच सेक्टर इज लैगिंग बिहाइंड, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अहेड। Yes, if we talk about the historical changes in the different sector, in the primary sector, in the secondary or the tertiary sector,
So, according to the present scenario, we can say that the tertiary sector is dominating. How we can say that? Because we can easily observe it around us. आप खुद देख सकते हैं कि आज के डेट पे बहुत से लोग जो हैं वो टर्शरी सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है. You can take an example of your family as well. If your father belongs to a service sector, definitely बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप अपने आसपास देख सकते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू वर्क, वांट टू गेट अ जॉब इन द सर्विस सेक्टर. दे डोंट वांट टू वर्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर और द फार्म लैंड. अंटिल उनकी मजबूरी नहीं है तब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर को ऑप्ट नहीं करते हैं. जनरली हम कौन से सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं? इफ़ वी पीपल आर एजुकेटेड, वी विल वर्क इन दी companies, we will work in the public sector, private sector, formal institutions. We don't want to work in the primary sector. Yes, so we can easily observe that the sector which is providing more employment nowadays is the tertiary sector or service sector. So अगर हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो क्या कहता है? तीनों ही सेक्टर में से अमंग द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग सेक्टर है वो कौन सा है? टर्शरी सेक्टर है. लेकिन क्या ड्यूरिंग द अर्ली इंडिपेंडेंस एरा भी ऐसा ही था? क्या 1947 से लेकर के या हमारे प्लानिंग पीरियड 1950s की हम बात करें तो क्या तब भी टर्शरी सेक्टर इतना इम्प्रूव था, या ये चेंजेस इस टाइम पीरियड के दौरान आए? ठीक है, तो हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे अभी. सो एग्जैक्टली द सिचुएशन वर नॉट सेम एज इट इज़ इन प्रेजेंट. आज की डेट में हम बोल रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर इज़ more active or providing more employment opportunities to the people. But what about the history? So generally it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development प्राइमरी सेक्टर वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर. और हम भी इस बात को जानते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, approximately 75% of the total working population were engaged in the primary sector or were dependent on the primary sector for their livelihood. ठीक है, तो अगर हम उस टाइम पीरियड की बात करते हैं, अर्ली एरा ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया में भी more people were interested to work in the primary sector. As methods of farming change and agriculture sector begin to prosper, it produced much more food than before. और 1947 में तो हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी वॉज नॉट सो गुड इन सिचुएशन इकोनॉमिकली और फिनेंशियली, बट समवेयर वी स्टार्टेड आवर प्लान पीरियड इन 1950 with help of establishing planning commission. The situation इम्प्रूव्स, या हम बोल सकते हैं कि एक बेटरमेंट हमें देखने को मिला. ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या था कि मोर पीपल वर नाउ इंटरेस्टेड टू वर्क देयर more. Many people could now take up other activities, therefore were increasing number of craft persons, traders, buying and selling activities increased many times. ठीक है, तो एग्रीकल्चर बढ़ने से क्या हुआ कि पहले जहाँ लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे, प्लानिंग पीरियड स्टार्ट होने के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वो इम्प्रूवमेंट आया और लोग सेल्फ कंजम्पशन से हटकर सेलिंग के पर्पस से भी कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने लगे. ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है. सो हियर वी ऑब्जर्व दैट एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आया. एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इम्प्रूवमेंट आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ पीपल जो था एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वो भी इम्प्रूव हुआ. एंड व्हाट अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? क्योंकि देखो पहले क्या था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, और पीपल डोंट हैव सेविंग्स टू इन्वेस्ट और टू एस्टेब्लिश द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. लेकिन ओवर अ लॉन्ग टाइम जैसे जैसे इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होने लगा या एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों की इनकम इंक्रीज होने लगी, तब
नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी स्टेब्लिश होने लगी, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मैथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड स्पेंडिंग. तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा या टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का या मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग्स का या इंडस्ट्रीज का स्टेब्लिशमेंट हुआ. Those people who had earlier worked on farms now begin to work in factories in large numbers. देखो, जहाँ हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन दैट वर्क वर ऑल्सो इंक्रीज, बट बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज और द इंडस्ट्रीज. एंड व्हाट अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज? अब ऐसे लोग, बिकॉज वी आर quite aware about the uncertainties in agriculture sector. People of India who were working in the farmland, they faced problem of irrigation, less irrigation facilities. People were dependent on monsoon for the irrigation. तो ऐसे में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ के साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रहे थे लोग. लेकिन ऐसे लोग जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रहा था, या दे वर फेसिंग द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दे वॉज फेसिंग एनी डिफ़िकल्टीज इन दैट सेक्टर, दे मूव टूवर्ड्स टू द factories, to the industries. Now they begin to work in the factories in large numbers. So people began to use many more goods that were produced in the factories at cheap rates. Secondary sector gradually becomes the most important in total production and employment. So over a long time, इस चीज़ को इम्प्रूव होने में लगभग सालों लगे हैं. आप कह सकते हैं it took 100 of years if we talk about overall world, not only about India. अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव होने में कई 100 साल लगे हैं. Hence over time a shift had taken place. This means that the importance of the sector had changed. लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि we have seen the improvement, definitely improvement in the secondary sector. So in the past 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary also. तो अभी तो हम बात कर रहे थे किसकी? प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी से हम टर्न आउट हुए किस पर? सेकेंडरी सेक्टर पे. सो व्हाट अबाउट द टर्शरी सेक्टर? यही कुछ चेंजेस हमें टर्शरी सेक्टर में भी देखने को मिलते हैं. It also took a long time of 100 years where people started to shift from the secondary to the tertiary sector. So in the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. The service sector has become the most important in terms of total production. तो अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की, डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे पहले ये चेंज देखने को मिला कि लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव ऑन करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. This is the general pattern observed in the developed countries and following by the developing as well. आज की डेट में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी the situation is quite similar because we people are more keen toward the service sector. ठीक है, तो this was a change that has been observed in all the three sectors of economy that took a time of 100 year, a long period of time to improve all these sectors individually. So now here we can easily understand the comparison among the three sectors of economy, primary, secondary and the tertiary on the basis of GDP. अगर हम एक बार देखें इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं. In the year 1973 और 74, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर तीनों के टोटल प्रोडक्शन को हमने इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यहाँ पर एक फ्लो चार्ट पर शो किया है. तो देखो, इन द ईयर 1973 to 74 द टोटल प्रोडक्शन और द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी वाज वेरी लेस, not only in the primary but also in the secondary or tertiary. But if we compare all the three sector in this time period, तो हम देख सकते हैं, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राइमरी है
दैट इज़ क्वाइट मोर देन द सेकेंडरी, और टर्शरी सेक्टर भी इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी कम दिखाई देता है। लेकिन अगर हम 1973 और 74 को कंपेयर करते हैं with 2013-14 scenario, so we can easily observe that changes came in all the three sector, but more can be considered in the tertiary sector. सबसे ज़्यादा जो चेंज देखने को मिला, सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज, इन्हांसमेंट जो देखने को मिला हमें टर्शरी सेक्टर में देखने को मिला। उसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में भी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलता है। इनके कंपैरिजन में अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, ऑल्दो प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल, बट इन कंपैरिजन ऑफ tertiary and secondary it was less. I hope it's clear up to you. तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को देखने के बाद हमें पता चल गया कि तीनों ही सेक्टर में अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो इम्प्रूवमेंट दिखता है, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी और टर्शरी में भी। बट if we talk about the changes were more in which sector, so we observe that the tertiary sector was the best one, or we can easily say that the more improvement came in the tertiary sector in the field of production. Now as we observe that among the three sector, the tertiary sector was leading sector because of production activities, because of servicing, or because of the involvement of working population in this sector was quite more than the other two. So we are going to discuss here the rising importance of tertiary sector. Over the 40 years between 1970 to 71 and 2010 and 11, while production in all the three sector has increased, it has increased the most in the tertiary sector, that we understand with द फ्लो चार्ट। अभी हमने ऑब्जर्व किया तीनों ही सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में हुआ? टर्शरी सेक्टर में। एज अ रिजल्ट इन द ईयर 2010-11 द टर्शरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। तो अब तक जो कि बिफोर द इंडिपेंडेंस की बात करें, अर्ली इंडिपेंडेंस एरा की बात करें, या प्लान पीरियड के इनिशियल फेज़ की बात करें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर लीडिंग सेक्टर हुआ करता था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। बट नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द चेंजेस came into the tertiary sector, or how the production increased with speed in this sector, we can say that tertiary sector is now more important in the Indian economy. सो वाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इंडिया? ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि इंडिया में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है टर्शरी सेक्टर? देयर कुड बी सेवरल रीजंस, तो वो सेवरल रीजंस को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग विद द फर्स्ट रीज़न। In any country, several services such as hospital, educational institution, post and telegraph services, police station, court, village administration, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. किसी भी कंट्री में क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी रन कर पाएगी बिना किसी बैंकिंग सर्विसेज के, बिना पोस्टल सर्विसेज के, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज के? क्या हम रन कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को प्रॉपरली? सो आंसर विल बी नो, बिकॉज वी कैन नॉट इमेजिन। आज की डेट में बैंक नहीं होंगे या इंश्योरेंस नहीं होगी तो क्या हमारी लाइफ इतना इजी हो सकती है? हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, स्कूल कॉलेजेस नहीं होंगे, वी कैन नॉट इमेजिन इवन, राइट? तो these can be considered as basic service. So in a developing country, the government has to take responsibility for provision of these services. तो पहली चीज़ तो क्या है कि कंट्री की इकोनॉमी इन सर्विसेज के बिना चल ही नहीं सकती, इम्प्रूवमेंट देखा ही नहीं जा सकता। तो फर्स्ट रीज़न इज कि बिकॉज अ कंट्री रिक्वायर्ड ऑल दीज काइंड्स ऑफ सर्विसेज। सेकेंडली, the development of agriculture and industry leads to the development of services
Secondly, transport, trade, storage, and like as we have already seen, greater the development of the primary, secondary sector, more would be demand for such services. जितना ज़्यादा किसी कंट्री में प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी, एज वी हैड डिस्कस दैट प्रोडक्शन इन ऑल द सेक्टर ऑल्सो इंक्रीज अपार्ट फ्रॉम द टर्शरी सेक्टर. तो किसी भी इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एग्रीकल्चर सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में, डेफिनेटली देयर विल बी अ नीड टू जनरेट मोर सर्विसेज इन द सर्विस सेक्टर. Third important reason is as income level rise, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private हॉस्पिटल, स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा. जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जाता है, हमारी इनकम इम्प्रूव होती है, तो वी क्रिएट डिमांड फॉर मोर थिंग्स. आज एजुकेशनल सिस्टम को देख लो, स्कूल के अलावा बच्चे कोचिंग्स प्रेफर करते हैं, ट्यूशन्स प्रेफर करते हैं. सो दिस इज़ काइंड ऑफ वी पीपल डिमांड फॉर मोर. ऐसे में ज़्यादा सर्विसेज जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है. फोर्थ, ओवर द पास्ट डेकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. तो प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विसेज इम्प्रूव होने की वजह से उन्हें और ज़्यादा फास्टर बनाने के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन का भी यूज़ करते हैं टू मेक आर एक्टिविटीज़ in assess of each and everyone. So the fourth reason is over the past decades requirements such as information technology और communication को improve करना पड़ा है. So all these reasons behind the rising importance of tertiary sector into the Indian in the Indian economy, right? So now we get to know why the tertiary sector become more important. The next topic that we will cover in our next class, which is about creation of employment in these sectors, the other classification of sectors of economy,